We live in a connected world. With digitalization and globalization, we live in a world of technology. We communicate, build, and innovate through technology. With technology at the center of our daily lives, we see our lives shaped by it. It's transforming the way we live, the way we do things. And we at Dixon want to lead that transformation. This journey started about 30 years back with a dream to make India the next hub for electronic hardware manufacturing and Dixon to be at the forefront of this revolution. In a short span of 30 years, Dixon has emerged as the largest homegrown Indian electronic manufacturing services company in many diverse fields. We started off with a single factory, and today the company has 17 state-of-the-art manufacturing locations all over India. We started with a single product, which was CRT televisions, and today the company is present in many diverse fields. But most importantly, we started with a single customer, and today we have many satisfied customers in India and across the globe. Customers who trust us and customers who have put their faith in us. Dixon today has emerged the brand behind brands. At Dixon, our focus has always been on designing and developing best-in-class products for our customers across the globe, along with expanding our product portfolio into newer verticals. Dixon operates in the verticals of LED TVs, washing machines, lighting systems, mobile phones, medical devices, and security surveillance systems. It has lately forayed into IT products, telecom devices, and audio products such as true wireless sound headsets. My friends, the journey has just begun. We are of a firm conviction that electronic goods being sold in India would be manufactured in India, and various products are going to be servicing the global markets. Further, Dixon would be leading this initiative on behalf of the country. We are an outsourcing organization, and we are fortunate that we have deep relationship with marquee global and Indian brands. Dixon is proud to be sending India's message across the globe. Within the last 5 years, the revenues have grown from less than $300 million to $1.7 billion. At Dixon, we also understand that with success comes responsibility, and we believe in playing our part for the community and the society at large. We strive to ensure the well-being of the environment and communities we operate in, and are committed to the CSR strength, competitive excellence, and a dedicated staff. Dixon has continued to change the face of the industry for over 30 years. Over 30 years of excellence, over 30 years of trust, over 30 years of commitment. Yes, it's been over 30 years, but we are just getting started. दोस्तों, आप सभी का LTI में स्वागत है। डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि हमें आने वाले समय में कितना रिटर्न बनाकर दे सकती है कंपनी और किस प्रकार इसने रिटर्न बनाकर दी है और ये क्या काम करती है, आप बखूबी समझ जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इनके रिजल्ट आ चुके हैं, वो भी हम अपडेट करेंगे किस प्रकार के हैं। अगर देखें इनका कामकाज 1994 में कलर टीवी बनाना शुरू किया, 2007 में LCD टीवी, 2008 में सेफल लाइटिंग, रिजर्व लॉजिस्टिक्स यानी कुछ और खराब हो उसका पुनर्वृत्ति, 2010 में देखते हैं LED टीवी, वॉशिंग मशीन्स, 2016 में मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप, ये सारी चीजें, 2017 में CCTV एंड DVR। आप देख रहे हैं CCTV आजकल घर घर में, नगर नगर में, हर चौराहे पे नजर आने लगे हैं, हर सोसाइटी में, हर गली मोहल्ले पे CCTV नजर आने लगे हैं, उनकी डिमांड बढ़ी है। 2019 में सेटअप बॉक्सेस, 2020 में देख इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, खासकर जब कोविड आया उसके बाद ऐसे कुछ मशीनों का डिमांड बढ़ गया। अब निरंतर इस कंपनी का जो प्रगति हो रहा है, इतने प्लांट्स, इतने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़ाते जा रहे हैं, इतने सारे इनके कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं, इतने सारे ब्रांड जो है इनसे प्रोडक्ट बनवाते हैं और अपने ब्रांड का नाम देते हैं। अगर देखें ये एक इलेक्ट्रॉनिक
मैन्युफैक्चर लीडर हैं एलईडी टीवी वगैरह, एलसीडी टीवी वगैरह, मोबाइल लैपटॉप वगैरह। मोस्टली अगर देखा जाए नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में, देहरादून, उत्तराखंड, ये सारी जगहों पे इनका यूनिट्स है। इनका स्टॉक प्राइस है समथिंग, इसका स्टॉक प्राइस है 4300 के आसपास। लेकिन आप नोटिस करिए इसका जो फेस वैल्यू है 2 रुपए फेस वैल्यू, यानी कि 10 की फेस वैल्यू पहले थी, 5 टाइम स्प्लिट हो चुका है। अदरवाइज आज ये 20,000 रुपए के आसपास होता। जब लॉकडाउन था, कोरोना के टाइम था, लॉकडाउन के उस समय जब ये इसका प्राइस हुआ करता था विदाउट स्प्लिट 4000 के आसपास, काफी अच्छा खासा रिटर्न बनाकर इसने दिया है। अगर करंट में इसका हाई लो देखते हैं 5000 के आसपास हाई बना चुका है और साल का जो लो रहा 3180 का। अब क्योंकि पूरे भारतीय बाजार में गिरावट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1 साल पहले जिन्होंने निवेश किया है उससे 18% का लॉस है। हालांकि जो 6 महीने पहले निवेश किए हैं उनको 1.28% का रिटर्न प्राप्त हो रहा है। इतना गिरने के बाद भी जब 6000 के आसपास हाई बनाया था, 6000 के आसपास हाई बनाया था, वहां से गिरने के बावजूद भी आज भी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 109 का है। वैल्यूएशन वाइज अगर देखा जाए तो किस प्रकार का है, काफी महंगी कंपनी है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर देखें तो प्राइस टू बुक वैल्यू अगर देखते हैं तो 22 का है। वैल्यूएशन का बात अलग है। सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि जो निवेशक हैं, जो स्टॉक प्राइस है, जो इसका ईपीएस है, अगर आप डिवाइड करेंगे तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आएगा। लेकिन जब 4275 पे लोग बने हुए हैं और लोग खरीद रहे हैं 4000 के आसपास, स्टॉक नीचे नहीं जा रहा है, तो फिर कैसे प्राइस टू अर्निंग रेशियो का रेशियो कम होगा। स्टॉक प्राइस नीचे नहीं गिर रहा है तो कैसे स्टॉक प्राइस अर्निंग रेशियो कम है। इस वजह से निवेशक इसे इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, खास करके विदेशी निवेशक। शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी हम देखते हैं और जो इसका मार्केट कैपिटल है 25,000 करोड़ के आसपास है। 18 सितंबर 2017 को इसकी लिस्टिंग हुआ था। अब यहाँ पर हम क्वार्टर दर क्वार्टर देखते हैं। सितंबर 2022 3867 करोड़ का जो सेल्स हुआ, जबकि पिछले क्वार्टर में जो थी 2855 करोड़ की, जिससे कि पिछले क्वार्टर से बढ़कर आया है। और ऐसे साल दर साल अगर देखते हैं क्वार्टर में तो सितंबर 2021 में 2804 करोड़, जो कि सितंबर 2022 में 3867 करोड़, तो अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखते हैं उससे काफी अच्छा खासा बढ़कर आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखते हैं तो 145 करोड़ का निकल कर आ रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर में था 100 करोड़ का और पिछले वर्ष के क्वार्टर में था 110 करोड़ का। दरअसल एक कंपनियों में क्या होता है, इनका जो लागत होता है, इनका जो चिप्स वगैरह है, धातु होता है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हैं उसमें काफी ज्यादा कॉस्टिंग लग जाते हैं। बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो काफी एक्सपेंसिव होते हैं। जिस प्रकार से इसका सेल्स है उस प्रकार से अगर देखेंगे इसका शुद्ध मुनाफा तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है। लेकिन हाँ, प्रॉफिटेबल कंपनी है। और देखिए इस क्वार्टर में 77 करोड़ का मुनाफा निकालने में काबिल रही। पिछले क्वार्टर में 45 करोड़ और पिछले वर्ष के क्वार्टर में 60 करोड़, तो इस क्वार्टर्स के नंबर काफी अच्छे आए हैं। इसी तरीके से अगर हम साल दर साल देखते हैं तो, क्योंकि साल दर साल देखना बहुत जरूरी है। देखिए प्रत्येक वर्ष इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। 2012 से लेके 2022 तक आप देखेंगे 2012 में मात्र 572 करोड़, जो कि 2022 में अभी 12,748 करोड़, 2022 के वित्तीय वर्ष में 12,748 करोड़ का। होता क्या है ऐसी कंपनियों में, हम आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि कल को इनको कितने बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल सकती है। इनके पास बड़ी कंपनी आए कि हमारे लिए लैपटॉप बना दीजिए, हमारे लिए डिवाइस बना दीजिए, कितना ऑर्डर्स मिल जाए, और आती रहती हैं। हमारे लिए लैपटॉप बनाइए, असेंबल कर दीजिए, सेटअप बॉक्स बनाइए, डिवाइस बनाइए। कल को कई प्लांट्स लगा दें, दिन ब दिन ये स्पेंड्स करते जाए अपने आप को, तो जाहिर सी बात है इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, बाजार इनको वैल्यू देगा, प्रॉफिट भी अच्छा खासा कमाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स का ही जमाना है, आप देख रहे हैं। हम चाहे मोबाइल यूज करते हैं, आप देख रहे हैं, चाहे हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल बड़ा हब बन गया है भारतवर्ष में। मोबाइल बड़ा हब बन चुका है भारतवर्ष में। देखते देखते भारतवर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स का ही जमाना है। चाहे हम मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल का बड़ा हब बन चुका है भारतवर्ष देखते देखते। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। साथ ही साथ टीवी हो गया, एक्सपायर भी होती रहती है, खराब भी होती रहती है, चाहे एलसीडी टीवी हो, चाहे एंड्रॉइड टीवी हो। एक समय के बाद जब तक वारंटी रहती है चलती है, नहीं तो एक्सपायर हो जाती है। वॉशिंग मशीन वगैरह बनाती हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो शुद्ध मुनाफा रहा, इनको बिजनेस मिलता रहेगा, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे फ्रिज हो, ये सब प्रकार के आइटम्स बनाते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे जो शुद्ध मुनाफा रहा, जो 2013 से स्टेबल रहा, कंटिन्यू स्टेबल रहा है। इस तरीके से आप देखेंगे जो शुद्ध मुनाफा रहा लगातार बढ़ते हुए आ रहा है, जो कि 2022 में देखेंगे 190 करोड़ का शुद्ध मुनाफा रहा, जो
कंपाउंडेड चीजें निकल कर आ रही हैं। जैसे 10 वर्षों के सेल्स ग्रोथ अगर देखें 34%, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 40% का है। स्टॉक प्राइस CAGR 5 वर्षों का 51% निकल कर आ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए यहाँ है 10 वर्षों का 23%, जो कि ठीक है, अच्छी है। इस कंपनी में एक ही चीज है, जो प्रमोटर है उनकी जो होल्डिंग है वो प्रत्येक क्वार्टर में कुछ ना कुछ घटती सी गई है। आप यहाँ पे भी देखें Q1 से लेके Q2 में तो भी मामूली सी घटी है, 34 पॉइंट से 30 मामूली सी घटी है। इसका कारण देखिए, बहुत कारण होते हैं, कई कारण होते हैं इसका। कंपनी जब फंड रेज करती है तो कैसे करती है, या तो बैंकों से एक बड़ा लोन लेती है, या फिर अपना शेयर्स गिरवी रखती है तो फंड उठाए, या फिर कंपनी अपना इक्विटी निकाल के थोड़ा सा फंड रेज करके एक्सपेंसेस वगैरह करे। ये भी होता है। बहुत सारी कंपनी इन दिनों बहुत सारी कंपनियां लिस्ट हुई है और उन्होंने किया है। लगातार जो प्रोमोटर की होल्डिंग है वो डिक्रीज हो रही है, यही थोड़ा चिंताजनक बात है। लेकिन देखिए विदेशी निवेशक जो है क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़े हैं। जहां मार्च में प्रॉफिट बुक करके भागे थे, पहले अच्छे खासे थे 90, 80, 18, 19, 20% के आसपास, फिर से इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। DIs भी अच्छे खासे हैं, जहां 2022 के जून में 8.07% की थी, वहीं 18.59% का हो गया है, 18.59% का हो गया है। और DIs भी देखे अच्छे खासे हैं, जो जून 2022 में 8.07 की थी वो बढ़े हैं सितंबर 2022 में, वही हो गया 18.59% Q2 तक। सबसे ज्यादा जो घटे हैं वो रिटेल निवेशक हैं। यहाँ पर उन्होंने अच्छे खासे प्रॉफिट बुकिंग किए हैं, 42.56% से 30.87% तक रह गए हैं। अगर हम बोरोइंग के नाम पर देखते हैं, बोरोइंग के नाम पर मात्र 400 करोड़ के आसपास, अगर हम बोरोइंग के नाम पे देखते हैं, बोरोइंग में मात्र 400 करोड़ के आसपास, 413 करोड़ के आसपास इनके हैं, और रिजर्व इनके पास 1100 करोड़ के आसपास है। अब देखिए कंपनी ने जो रिटर्न बनाकर दिया है 5 वर्षों में, यानी 17 में इसकी लिस्टिंग ही हुई थी। लिस्टिंग के पश्चात जिन्होंने निवेश किया है उनको करीब 700% इस गिरावट में रिटर्न मिल रहा है, जो कि अगर देखा जाए तो 5 सालों में 700% एक बढ़िया मल्टीबैगर स्टॉक रहा है। 7 गुना एक कंपनी आपका पैसा कर चुका है। 10 सालों में एक कंपनी आपका पैसा करीब कम से कम 10 टाइम्स कर ही देगी, 10 टाइम्स कर ही देगी कम से कम। जिस प्रकार के इनका पास्ट का परफॉर्मेंस रहा है, तो गिरी से गिरी हालत में भी इतना तो रिटर्न की अपेक्षा कर सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का भारतवर्ष जो है हब बनने जा रहा है। दोस्तों हमें ऐसी कंपनी में क्या करना चाहिए? अगर दोस्तों हम वैल्यूएशन वाइज जाएंगे, वैल्यूएशन देखेंगे तो यहाँ पर देखा जाए तो बहुत महंगी है। दूसरी चीज अगर हम देखें, क्या हमें इस कंपनी में निवेश करना चाहिए? मुझे लगता है यस, क्योंकि इसका ही फ्यूचर है। देखिए कुछ कंपनियों में जहां पोटेंशियल होता है वहां कुछ कमियां भी होती हैं, और अगर हम कमियों को इग्नोर करके उसमें थोड़ा सा एक साधक के रूप में एक साथ पैसा तो डाल नहीं सकते। ऐसे बड़े प्राइस की स्टॉक में एक दो करके, जो भी हमारा स्वेच्छा से, अगर आपको एक कंपनी पसंद है, अगर आपको ये लगता है कि हमारे पास कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होना चाहिए, तो ऐसे लीडर के साथ जाना चाहिए। बड़ी कंपनी के साथ जा सकते हैं जो वेल एस्टेब्लिश है, जो काफी पुराने समय से मैन्युफैक्चरिंग करती आ रहे हैं, 94 से करती चली आ रहे हैं। उस जमाने में जब टीवी हुआ करता था 94 में टीवी की शुरुआत, तो ऐसी कंपनियों का कंसीडर कर सकते हैं आप और इसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपके विचारों और सुझावों का कमेंट बॉक्स में दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए